السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ دعا وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سب سے پسندیدہ دعا ہے میرے آقا کی، میرے حضور کی۔ ہم نے آخری عشرے میں اس دعا سے فیض لینا ہے، ہم نے آخری عشرے میں اس دعا سے استفادہ کرنا ہے۔ اس دعا کی تہ تک پہنچیں، اس میں ہے کیا، اور اس دعا کے اندر کتنی خیریں ہیں، کتنی برکتیں ہیں اور کتنی سعادتیں ہیں اس دعا کے اندر۔ میرے حضور کی ساری دعائیں پسندیدہ، ساری دعائیں سعادت مند، ساری دعائیں مبارک، لیکن یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا والی، آخر میرے حضور کی سب سے زیادہ پسندیدہ کیوں ہے؟ اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں کی خیر چاہتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کہتا ہے بندے تم سلامتی کی طرف رہو، میں تمہیں سلامتی کی طرف بلاتا ہوں، اور سلامتی سے مراد راحت، رحمت، رزق، عافیت، سلامتی، خیر، برکت، نقصانات، حادثات نہ ہوں۔ میرا اللہ نہیں چاہتا، کیونکہ کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وہ صفات کے اعتبار سے سب سے زیادہ کرم والا، عطا والا، شفقت والا میرا اللہ ہے۔ اور میرا رب، اور رب کا جو حبیب ہے وہ رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین، اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور عنایتوں کا کوئی کنارہ نہیں۔ اب چاہا یہ جا رہا ہے کہ بندے جتنے بھی ہیں ان کو کچھ زندگی کا ایسا انداز دیا جائے، ان کو زندگی کا کوئی ایسا انداز دیا جائے کہ ان کی زندگی کا یہ حصہ جو موت سے پہلے کا حصہ ہے اور وہ حصہ جو موت کے بعد کا حصہ ہے، ان دونوں حصوں میں زندگی راحت، عافیت کے ساتھ کیسے گزرے، رزق وسیع ہو، کسی کا منگتا نہ ہو، صحت ہو، محتاج نہ ہو، کیونکہ رزق اور صحت یہ دو چیزیں ہیں بندے کو ہر خیر کے کام سے ہٹا دیتی ہیں، یہ دو چیزیں ہیں جو بندے کو ہر خیر سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ دو چیزیں، ایک رزق اور صحت۔ ہمارے ایک بابا جی تھے حاجی غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ، ساری رات شب برات میں عبادت کرتے رہے، صبح اللہ کے پاس چلے گئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، میں نے خود سنا، کہتے تھے دو چیزیں انسان کو کسی قابل، نہ دین کی، نہ دنیا کے، نہ مرشد کے، نہ اللہ کے، نہ نبی کے قابل چھوڑتی ہیں، ایک جب رزق لٹ جائے، ایک جب صحت لٹ جائے۔ اس دعا کے اندر دو نعمتیں ہیں، ایک سعادتیں ہیں۔ اللہ میری دنیا کو بہتر نہیں بہترین بنا، حسناتم بہتر نہیں ہے، حسنات سے مراد بہترین ہے، بہترین بنا، میری دنیا کو بہترین بنا، کسی کا منگتا نہ رکھ، کسی کا محتاج نہ کر، میرے بڑھاپے کو شاندار بنا۔ میرے آقا نے، کملی والے نے بڑھاپے میں رزق وسیع مانگا ہے، بڑھاپے کی مجبوریاں اور ضروریتیں بڑھ جاتی ہیں، اے اللہ میرے بڑھاپے میں فقر نہ آئے، مجھے بڑھاپے میں تنگ دستی نہ آئے۔ مسنون دعائیں بھری ہوئی ہیں کہ بڑھاپا ایسا ہو جس میں میرا رزق وسیع ہو جائے۔ ہم نے آخری عشرہ شروع، ہم نے آخری عشرے میں اس دعا کی فیوز و برکات، جہاں اور عبادات، جہاں اور ذکر، جہاں اور تسبیحات، جہاں اور اعمال، جہاں اللہ کی ذات کا اور تعلق اور تعارف، وہاں کملی والے کا عشق، محبت،
یہاں آخری عشرے میں اس دعا کے فیوز و برکات اور اس دعا کی خیریں اور اس دعا کی عنایات کو کچھ بہت زیادہ ہی لینا ہے آخری عشرے میں. پھر دنیا حسنتم، دنیا حسنتم، اللہ میری دنیا کو بہترین بنا دے. میری دنیا وہ دنیا نہ ہو کہ وشماتت الاعداء، کہ لوگ مجھ پہ ہنسیں، لوگ تالیاں بجائیں. میں ایسی دنیا نہیں چاہتا. ایسی دنیا نہیں چاہتا کہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے میں. ڈھاکہ میں ایک بازار ہے، خانم بازار. ڈھاکہ میں ایک بہت بڑا رئیس تھا، اس کی جائیداد، اس کی زمین اتنی تھی کہ مہینوں گھوڑی دوڑتی رہے اس کی جائیداد ختم نہ ہو. مال دولت اتنا زیادہ تھا. زوال یوں آیا کہ فوت ہو گیا، ختم ہو گیا. زوال یوں آیا. ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا. انہوں نے آج تک بازار سے کوئی چیز لے کر خریدی نہیں تھی، ہر چیز گھر پہنچ جاتی تھی. تو اس بیٹی کو ایک شوق پڑ گیا اور بیٹے کو ایک شوق پڑ گیا. بیٹے کو شوق یہ پڑا کہ اس کو ماچس کی دیا سلائی، ماچس کو ایسے چلاتا تھا اور ماچس سے اس کو جو ہے اس کے بارود سے اس کو اچھا لطف آتا تھا. اور ماچس کے پٹاخے سے ایسے چلاتے ہوئے اس کے جو شعلہ نکلتا ہے اس شعلے سے اس کو سرور آتا تھا. وہ اس مشغلے میں پڑ گیا، دن رات یہی کام کرتا تھا. بیٹی ایک دفعہ کپڑا لینے گئی، آج تک لیا نہیں تھا. کپڑا لینے گئی تو کپڑے والے نے ریشمی کپڑا جو پھاڑا، اس کے پھاڑنے کی جو آواز ہے اسے اچھی لگی. اس نے کہا تو عجیب چیز ہے. پھر وہ ریشمی کپڑے کے تھان منگواتی تھی اور سارا دن انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرتی تھی اور پھاڑتی تھی. وہ اس مشغلے میں پڑ گئی اور یوں دولت ختم ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی. اور ایک وقت آیا کہ بازار میں کھڑی ہو کے وہ بھیک مانگتی تھی. اس کا نام خانم تھا، اس بازار کا نام خانم بازار بن گئے. پھر دنیا حسنتم، اللہ دنیا ایسی دینا، کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، کبھی منگتا نہ بنانا، کبھی بھکاری نہ بنانا. میرا ہاتھ نیچے والا کبھی نہ ہو، اللہ اوپر والا ہاتھ ہو. میرا ہاتھ نیچے والا کبھی نہ ہو، یا اللہ اوپر والا ہاتھ ہو. اللہ یہ پسندیدہ ہاتھ ہے جو اوپر والا ہاتھ ہے، نیچے والا ہاتھ پسندیدہ نہیں ہے. میں جھنگ میں گیا تو مجھے ایک مخلص کہنے لگے یہ چوک ہے، اس چوک پہ وہ بندہ کھڑے ہو کے مانگتا تھا اور اس کی اتنی جائیداد تھی، اتنی جائیداد تھی، اتنی جائیداد تھی کہ اس پورے علاقے نہیں، میلوں تک کسی کی نہیں تھی، سب ختم ہو گئے. میں گلی میں جا رہا تھا تو گلی میں جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ نالی کے اوپر، نالی کا کونا تھا، ایک چارپائی کے 2 پائے ادھر پڑے تھے، 2 پائے باہر پڑے تھے. نالی کے اوپر چارپائی تھی، نالی کے اوپر. میں اس بندے کو دیکھا، میں نے اس بندے کو دیکھا، میں فوراً میں نے کہا یہ، میں کھڑا ہو گیا. میں کہ لالا کیا حال ہے؟ مکا ہوا تھا، ختم ہوا پڑا تھا بالکل. پہچانا نہیں. میں نے کہا پہچانا نہیں؟ میں کہا میں ٹیڈی دا یار ہاں. اچھا ٹیڈی، ایک اس کو چھوٹا سا قد تھا تو وہ سبزی کی دکان لگاتا تھا، تو اس سے میں سبزی لیتا تھا تو میں اس کا تعارف کروایا. میں کہا میں ٹیڈی دا یار. اچھا. پھر میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ کا نام بتایا اپنا. اچھا. اوہو، کیا اس کا عروج تھا. بڑے بڑے شہنشاہ اس کو شادیوں بلاتے تھے، کوکنگ کا استاد تھا اور اس کے پاؤں اتنے سخت ہو گئے تھے، تپتی دیگ پہ پاؤں رکھ کے ڈائریکٹ پاؤں بغیر جوتے کے دیگ کے اندر ایسے کفگیر مارتا تھا.
तपती देख पे, जलती देख पे, मैंने खुद देखा। उसके पास वक्त नहीं होता था, एक के बाद दूसरी उसकी बुकिंग होती थी, एक के बाद दूसरी की आवाज होती थी, और वो मुंह मांगे मांगता था। क्यों? उसके हाथ में चाशनी थी, उसके पास फन था। फिर दुनिया हसनतों, कोई ऐसी बीमारियों, ऐसे हालात, कोई ऐसी गर्दिश में आया, फिर आखिरकार उसकी मैयत उसी नाली से उठी। गली में पड़ा रहता था, तो मैं उसको पेशाब पखाना के लिए उन्होंने चारपाई के अंदर सुराख कर दिया था, नीचे नाली थी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, क्यों मांगा? नवाब साहब का शाही मुआलिज था, शाही, एक स्टेट की नवाब का शाही मुआलिज था, और वो नवाब की आंख की पलक था। वो नवाब साहब को जो कहता था, नवाब साहब वही करते थे। शाही मुआलिज था, और इश्क इतना था उसके साथ नवाब को कि एक दफा नवाब साहब से नाराज हो गया, खुद नवाब से नाराज हो गया और गुम हो गया। नवाब तड़पे, मेरा मुआलिज कहां है, उसको ढूंढो। बरसगीर की 500 तकरीबन 57 रियासतें थी, स्टेट्स थी, उसने बंदे दौड़ाए। आखिरकार किसी ने कहा ये हैदराबाद, इंडिया वाला नहीं, सिंध वाला, हैदराबाद सिंध की फलां जगह एक जगह बैठा है बोरिया बिछा के और लोगों को गोलियां दे रहा है, ठाठ से बैठा है। नवाब दौड़ा, नवाब भागा भेस बदल के, और भेस बदल के ना फिर जब सामने आया, उसके बाद रश लगा हुआ था, उसके पास फन था, वो बोरिया बिछा के बैठे, या नवाब के शाही महल में हो, उसका फन था, वो फन में बाकमाल था तो नवाब उस पे दीवाना था। नवाब ने जाके अपना चेहरा हटाया और उसका नाम लेके कहने लगा, उठ खड़ा हो। चुप करके सर झुकाया उसने, आंसू आए, और नवाब साहब ने उसे गले लगाया और रोया और अपनी शाही सवारी में बिठाया। एक उरूज का कमाल यह था, अब जरा गौर से सुने। और यूं जाते ही दो बेटे थे, और वो दो बेटे को ऐसी जिंदगी में पड़े, घर की हर चीज बिकती गई। एक दफा कुछ नहीं था, घर की बहुत बड़ी देवड़ी थी। पहले ना दरवाजा होता था, उसके आगे देवड़ी होती थी, बहुत बड़ी, वहां लोग आके बैठते थे, मेहमान बैठते थे। उसने ऐसे ऊपर देखा तो बड़े कीमती बेल्जियम के गार्डर खड़े थे और उनके ऊपर खूबसूरत छत थी। बस ख्याल आते ही बंदे आए, उन्होंने छत उखाड़ी और वो गार्डर उखाड़ के बेच दिए। मैंने उसको नंगी छत को देखा, उसने घर की कोई चीज नहीं छोड़ी। उसके अंदर एक चीज पड़ गई थी कि उसको खाना खाता था, हजम हो जाता था, फिर खाता था, खत्म हो जाता था। फिर एक बंदा था, मैंने खुद देखा, उसको ख्वाजा साहब कहते थे। वो हाथ में छाबी होती थी और एक कटोरी होती थी, और एक निहारी वाला था, निहारी वाला गुलाम हुसैन। उस निहारी वाले से जाके 4 आने की 2 रोटियां आती थी और 8 आने का सालन आता था, और वो लाता था और खाता था, फिर जाता था, लाता था, खाता था। उसको जूअल बकर, इसे जूअल कल्ब भी कहते हैं, कुत्ते की भूख, या जूअल बकर गाय की भूख, वो पड़ गई, उसका पेट नहीं भरता था। हर चीज खत्म हो गई, फक्र के इंतहा, फाकों के इंतहा, घर की हर चीज, हत्ता के एक दफा घर का सिर्फ गली वाला दरवाजा रह गया, बाकी उसने दरवाजे कोड़ के बेच दिए। मौला मुझे वो जिंदगी दे जिसमें रब्बना आतिना फिद दुनिया हो। आका ने ऐसे नहीं फरमाया, मेरे हुजूर ने इस दुआ को ऐसे पसंद नहीं फरमाया। हुजूर ने फिर इस दुआ को ताकत देने के लिए एक और दुआ में एक जगह फरमाया,
अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिका, अल्लाह नेमतें देख के फिर उसका जवाल मुझ पे आ जाए और नेमतें मुझसे छिन जाएं, अल्लाह उस वक्त से बचा, अल्लाह उस वक्त से बचा कि नेमतें आए और मैं नेमतों को देखूं और नेमतों में खेलूं और नेमतों की वजह से मुझे इज्जत वकार शान और शौकत मिले, मुझे कमाल मिले, फिर एक वक्त है वो नेमतें मुझसे छिन जाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिका, नेमतों के जवाल से मौला बचाना। इस दुआ की ताकत को मेरे आका ने बढ़ाने के लिए, मेरे हुजूर ने इसकी वजाहत को समझने के लिए एक दुआ में फरमाया, व शमाततिल आदा, अल्लाह ऐसा वक्त न लाना दो दुश्मन मुझ पे तालियां और दुश्मन मुझ पे जो है वो हंसें और तालियां बजाएं। व शमाततिल आदा, इस दुआ के अंदर ताकत है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम, फिद दुनिया हसनतम, हाँ फिद दुनिया हसनतम। मैंने एक शख्स को देखा, दो घोड़ा बोस्की का सूट पहनता था। बोस्की का मिजाज है कि एक पल में उसमें सलवटें पड़ जाती हैं। एक सूट सुबह होता था, एक शाम होता था, बाजू फैला के चलता था। गनमैन बंदे इधर होते थे, बंदे इधर होते थे। मैंने आंखों से देखा, उसकी जिंदगी का उरूज देखा, फिर उसकी जिंदगी का जवाल भी इंतहा के था। एक सब्जी वाले ने सब्जी लगाई हुई थी, एक आटे वाले ने 1.5 किलो आटा लगाया हुआ था, किसी ने घी, किसी पड़ोसी ने कुछ, किसी ने कुछ, उसमें कुछ मैंने भी हिस्सा मिलाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ दिया, और जवाल की इंतहा थी, जवाल की। और एक वक्त ऐसा था 2 किलो 2 मन 5 मन 4 मन 1 मन गोश्त, मुर्गियां और खाने और शेफ पक रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और उनकी दावतें हो रही हैं और उनकी दावतें हो रही हैं। वो आज उन दावतों में जा रहा है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, जिस दौर में अमूमी गाड़ियां नहीं थीं, उन गाड़ियों के अंदर उसकी जिंदगी। और एक वक्त जिंदगी का आया, जवाल की इंतहा थी और इसी जवाल में मर गया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम। एक दरवेश फरमाते हैं, जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर जेब में पैसे ना हो तो इंसान का ईमान सल्ब हो जाता है, इंसान का ईमान खत्म हो जाता है। मेरे हुजूर कायनात के सबसे बड़े महरे नफ्सियात थे। मेरे हुजूर ने क्या दुआ फरमाई है, और इस दुआ के अंदर ताकत और तासीर, और इस दुआ के अंदर गहराई क्या है, इस दुआ के अंदर गहराई क्या है, इस दुआ के अंदर ताकत क्या है, गहराई क्या है, सोचें। हाँ, गहराई क्या है। इंडिया पाकिस्तान का जितना भी ये अमृतसर का पंजाब था, ये पंजाब है। एक आधा पाकिस्तान में आ गया, आधा इंडिया में चला गया। इस सारे पंजाब का एक बड़ा था, सारे पंजाब का एक बड़ा था, सारे पंजाब का 1300 मुरब्बे जमीन थी और उसकी जिंदगी भी थी। लाहौर में उसका घर था कि घर के अंदर बंदा वॉक करे तो एक ट्रैक पे उसको 20-25 मिनट लगते थे, आधा घंटा लगता था, इतना बड़ा घर लाहौर में। और वहां जायदादें 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 जायदादें, हत्ता के बेटा कराची में एक मुलाजिम के यहां रहा और सिर्फ रोटी वहीं मिलती थी और फिर वहीं मर गया। ये 2-3 साल पहले मरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम, अल्लाह मेरी दुनिया को बेहतरीन बना दे। अल्लाह मैं ऐसी दुनिया नहीं चाहता कि मैं किसी का मोहताज हूं, मैं ऐसी दुनिया नहीं चाहता मैं किसी का मोहताज हूं, मैं ऐसी दुनिया नहीं चाहता कि मैं किसी का मोहताज बन जाऊं और मोहताजी मेरे ऊपर ऐसी आ जाए कि मैं दर दर का मंगता बन जाऊं, कि मैं दर दर का भिखारी बन जाऊं, मैं दर दर का साइल बन जाऊं। और ऐसी दुनिया ना हो कि मैं औलाद का मोहताज हो जाऊं, पड़ोसियों का मोहताज हो जाऊं। हाँ,
औलाद को सारी जायदाद लिख के दे बैठा। 4 दिन तो औलाद ने पूछा, 4 दिन के बाद 4 दिन के बाद हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मिस्त्री होते थे, मामा फजल। तो वो हमारे बाग के दूसरे काम, तामीरात के काम करते रहते थे, बस करते ही रहते, चलते रहते थे। कहने लगे कि मैं बीवी से कहता था कि बहू आएंगी, घर में रौनक होगी। तो बीवी मुझसे कहती कि अगर मैं बहू से मैं नहीं लड़ूंगी तो घर में झगड़ा ही नहीं होगा। मैं बहू सास के झगड़े बहुत सुने हैं। आके तू देख तो सही, तेरी बिस्तरी त्रीजे जाड़े टेशन ते होसी। मैं बीवी को कहता तू देख सही, तेरा बिस्तरा तीसरे दिन टेशन पे होगा। आके मैं जो आया शादी की बेटे की, कुछ हफ्तों के बाद, महीनों के बाद मैं जो घर आया, बीवी परेशान थी। तो मैंने कहने लगा हम गरीब से गरीब ले आया। वो उसका बाप घोड़ा चलाता था, वो सारा दिन घोड़े की लीद साफ करती थी, गुर्बत थी बहुत ज्यादा। हमने कहा गरीब घर से लाएंगे, यहां हमारे घर में कुछ रिस्क वसी है। तो कहने लगे कि बीवी परेशान थी। मैंने बीवी से पूछा क्या हुआ? कहने लगा लाल पंप पानी वाला, ये मोटर होती है पानी वाली, ये चल रही है, पानी ज़ाय हो रहा है। मैंने कहा बेटी बटन बंद कर दे। आके चुप कर बाए, किराया तू देनी है या मेरा पाए दे? इसका बिल बिजली का तेरा खामन देता है या मेरा खामन देता है? चुप करके बैठ जा, चलता है तो चलने दे। आके मैं तेरे को कहना कि हम जब बिस्तरी त्री जड़े टेशन थे उसी। जिंदगी के सफर में राहतें मिलें, आफियतें मिलें, यह भी रब्बना आतिना फिद दुनिया है। जिंदगी के सफर में सुकून के साथ जिंदगी गुजर जाए, यह भी फिद दुनिया हसना है। औलाद आंखों की ठंडक बन जाए, राहतों का जरिया बन जाए। तो वो औलाद को सारा कुछ लिख के दे बैठा था। औलाद ने उठा के बिस्तरी तीसरे दिन स्टेशन पे। अब कहीं घर नहीं, कोई रहने ना दे। कहे बाबा जी आप तशरीफ ले जाएं, आपके खांसी और बलगम से हमारे बच्चे बीमार होते हैं। थक गया और परेशान हुआ, जायदाद सारी लिख के दे बैठा हूं। एक सियाना था दोस्त, उसके पास गया। उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है। तांबे की ना पीतल की घाघर होती थी, घाघरें जिसमें पानी भरते थे। उसने कहा कुम्हार को कि इस कुम्हार में छोटी छोटी ठीकरियां टुकड़े टुकड़े करके घाघर की भर के मुझे ला दे। टुकड़े कुम्हार के जो होते हैं, उसने टोटे टोटे करके जितने भी टूटे बर्तन थे कुम्हार के, उसने वो भर के ला दी। इसने उसको हिलाया हिलाया हिलाया, इतनी सी गुंजाइश निकल आई, वो ठीकरियां बैठ गई। कहने लगे ये मेरी तरफ से आपको ये उधार है। ऊपर चांदी के सिक्के अशरफियां डाल दी इतनी सी, और उसको कपड़े से ढक्कन दे मुंह बंद कर दिया। कहने लगा बाकी काम मेरा है, बेटों को बुला। बेटों को बुला के कहने लगा बेटा आपके वालिद ने अच्छा किया, जायदाद सारी दे दी, पर ये एक शर्फियों की घाघर है, तेरे अब्बे दा मर्जी है। क्या है? मर्जी, यानी दुखे सुखे वेले का साथी है। ये तेरे बाप ने मेरे पास रखवाया था, और जो बाप की खिदमत करेगा ये घाघर सारी उसकी है। जो बाप की खिदमत करेगा ये सारी, उसने घाघर को उसे हिलाया ना तो घाघर छन छन हुई। पहले तो सारी हिलाए बैठा था ना, जो ठीकरियां नीचे जानी थी चली गई। ऊपर इतनी सी तह थी उसकी। चांदी वाले सिक्के होते थे पहले, रुपए वाले, चांदी वाले, तो वो सारे ऊपर भरे हुए थे। छन छन हुई ना तो अंदर भी छन छन हुई। उन्होंने कहा अब्बा तो अब्बा है, अब अब्बे के पहुंचों में अब्बे को चूरियां खिला रहे हैं, कोई मालशें कर रहे हैं, अब्बे दा वेला सोना गुजरिया। कोई खिदमत कर रहे हैं अब्बे की, कोई क्या कर रहे हैं अब्बे की। उन्होंने कहा ये घाघर मेरे पास बैठा अमानत है, अब्बे की जिंदगी जब तक है, अब्बा गुजर जाएगा। तो अब्बे ने तहरीरन लिख के दे दिया, ये वाकया है, 8-10 गवाहों को भी शामिल कर लिया, कल को कहें हमें घाघर पूरी करके दे। तो बेटा वाकया ये हुआ था, ये वाकया मैंने इसलिए किया है तुम्हारी बेवफाई की वजह से।
गवाह पक्के कागज लिख के अब अब्बे की खिदमत हो रही है। अब्बा जी सुभान अल्लाह, अब्बे को देखो हज उम्रे का सवाब मिलता है भाई, अब्बे को ऐसे देखो मकबूल हज का सवाब मिलता है। रोज हज शुरू हो गए, एक हज खत्म हो रहा है, दूसरा हज शुरू हो रहा है, और हर बंदा कहे कि अब्बे की खिदमत मैंने करनी है। आखिरकार अब्बा जी रुखसत हो गए, और रुखसत होने के बाद अब्बे को दफन करते ही सीधे चाचे के पास पहुंचे। घाघर वो कहे मैंने खिदमत की है, वो कहे मैंने क्या आपने खिदमत की है, वाकई खिदमत की है। अच्छा, इसके लिए आपके वालिद ने ये गवाह लिखे थे, इनको बुला के ले आओ ताकि मैं घाघर हवाले करूं। अगला भागा, उसको ले आया, उसको कहा कि कान में मेरी सिफारिश कर देना, उसको कहा भागा। सारे गवाहों को पता था कि कहानी क्या है। सारे गवाहों ने बैठ के फिर उनके साथ जो किया, उनके साथ जो किया कि तुमने बाप को की जायदाद जिसने पैसा पैसा करके जमा किया था और तुम्हें छोटा करके पाला था, तुमने उस बाप को इतनी जिल्लत की जिंदगी दी, ये इसने तदबीर की थी, हम गवाह हैं। ये घाघर भी इसी की है, ये ठिकरियां भी इसी की हैं, इसके ऊपर चांदी के रुपए भी इसी हैं। जाओ बाप की कब्र पे माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो। फिर दुनिया और फिर आखिरत हसनतम। आगे एक लफ्ज है जिस लफ्ज को आज मैं खोलना चाहूंगा, शायद आपको बहुत पता होगा, शायद इस लफ्ज का राज आज तक आपको इल्म होगा, मैं नहीं कहता आपको पता नहीं है, शायद कम पहुंचा हो। वो है वकिना अजाबन। ये जो नार है ना, नार, इसको हम समझे हैं जहन्नम की आग। ये सिर्फ जहन्नम की आग नहीं है। जिन किससे बना है बोले? जादू आग है, कीना बुग्स आग है, गुस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, गैर फितरी जज्बा आग है, गुनाहों का जज्बा आग है। वकीना अजाब अन्नार। देखें अल्लाह जल्ल शानहू ना अपने इल्म से इल्म अता फरमाते हैं, और अल्लाह पाक चीजों को अपने दिल पे खोलते हैं। अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह मेरे दिल पे अपनी मार्फत खोल दे। वकीना अजाब अन्नार, इसको सोचें कि अल्लाह उस आग से बचा जो आग मेरी जिंदगी में तलखियां खोल दे, जो आग मेरी जिंदगी में बुग़्ज़ कीना दे दे, जिस आग से मैं वहशी बन जाऊं, जिस आग से मैं हैवान बन जाऊं, और इस आग से मैं तुझे भूल जाऊं, जिस आग से मैं रिश्ते भूल जाऊं, और जिस आग, हिर्स की आग, हविस की आग, गुस्से की आग, इंतकाम की आग, कीने की आग, बुग़्ज़ की आग, नफरत की आग, जादू आग है, जिन्नात आग हैं, नजरे बद से एक आग निकलती है जो उस बंदे को जला के रख देती है और पत्थरों को तोड़ के रख देती है। वकीना अजाब अन्नार। तो जब आग लगती है फिर उसका अजाब होता है। दुनिया में नजरे बद की से क्या होता है? जादू से कौन सा अजाब में बंदा मुब्तला होता है? जिन्नात की दुनिया से कौन से अजाब में बंदा मुब्तला होता है? सोचें, अजाब है ना। किसी के साथ किसी ने आपके लिए दिल में नफरत और कीना रख लिया, इससे बड़ा अजाब क्या है कि किसी वक्त भी वो नुकसान दे सकता है और दिल में उसका हर वक्त खौफ है। ये खौफ का अजाब है। और गैर फितरी जिंदगी, गैर फितरी ख्वाहिशात और गैर फितरी जिंदगी और ऐसी गुनाहों की आग, ये आग है। मौला मुझे इस आग से बचा। दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम। अब समझ आई, दुनिया और आखिरत बेहतरीन अगर बनेगी तो आग से बच के बनेगी। अगर आग से ना बचे दुनिया में, बड़ी बारीकी में जाएं, सोचों के धारों में जाएं, सोचों के समंदर में जाएं, फिर मोती निकलेंगे। सोचों की गहराइयों में जाएं, फिर सच्चे मोती समंदर की गहराइयों में पड़े होते हैं। अगर आग से ना बचे, आग से ना बचे
आग से ना बचे। एक दुनिया में सबसे महंगी किताब थी, एक बोली लगी कि एक बंदे ने किताब लिखी है और दुनिया की सबसे महंगी किताब है, उसकी करोड़ों लाखों डॉलर में, उसकी लाखों डॉलर में बोली लगी कि इसमें दुनिया का, कायनात का सबसे बड़ा राज है। बड़े बड़े लोग उस राज को पाने के लिए किताब के पीछे लगे। आखिर किताब की जिसने सबसे ज्यादा बोली दी उसने किताब खरीद ली। अब तजस्सुस था, बॉक्स था, बंद था, हर चीज। भाई इस बंदे को उठाओ, मैंने पहले कहा इसको मेरे सामने ना बिठाया करो, उसकी मजबूरी है सोने की, वो मजबूर है। मैंने पहले भी अर्ज किया था, वो बेबस आदमी है। मेरे सामने कोई बैठे, मेरे मजामीन खत्म हो जाते हैं, मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं। वो मियां बीवी की दो झगड़े हुए तो मेरे पास आया, बीवी कहने लगी हजरत साहब आपको पता है मैं बेबस हूं, मजबूर हूं, मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मैं जूता भी मार देती हूं, फिर मैं नोच भी लेती हूं। मैंने उसके शोहर से कहा, मैंने कहा बेबस है, कहने लगी थी हजरत साहब ने भी आखिरी थे, देखा ना हजरत साहब ने भी कह दिया ताकि मोहर लग जाए कि आइंदा भी ऐसे बेबस बन जाओ। जहां मेरा वक्त है गुस्सा आ जाए, जहां मेरा वक्त है गुस्सा, साइंसी गुस्सा है ना, जहां जरूरत हो गुस्सा खत्म हो जाए, जहां हो आ जाए। वो बंदा बेबस है, उधर मैं बेबस हूं। क्या बात थी। अब देखें ना, एक बंदे की खातिर सारा मजमून इस तरह टूटता है। किताब को बहुत बेचारे ने खोला, एक तह के ऊपर दूसरा खाना निकला, दूसरे खाने से तीसरा खाना, खानों के बाद खाना, खाने के बाद बॉक्स खोलते 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 फिर एक किताब निकली, किताब पे कवर चढ़ा हुआ तो सारे किताब के सफ़े खाली थे। उन्होंने कहा भैना लुटी गई। दो माइयां कर रही थी तवाफ, तो मैंने सुना, एक ने कहा कि कपड़ा कितने मीटर लिया, उसने कहा मैंने इतने रुपए, इतने रियाल लिया। दूसरे का वही कपड़ा, मैंने तो इतने रियाल लिया, तवाफ कर लेंगे। दूसरी कहने लगी पैना मैं तो लुटी गई। तवाफ हो रहा। इसलिए कहता हूं सऊदी अरब में जाया करो, वो सारी चाइना का माल यही है, वो वही है, यहीं से ले लिया करो, वहां अल्लाह लेने जाया कर। हाँ आखिरी खजूर और जमजम है, वो फिर वहीं से ले लिया करें, बाकी हर चीज यही है। और यहीं से जान नमाजें बन के वहीं जाती हैं, यहीं से तस्मियां, सिर्फ मोरे और ठप्पे लगते हैं। किताब खोला तो किताब सारी खाली थी, पर किताब के आखिरी सफे पे सिर्फ 2 लफ्ज लिखे हुए थे। अब वो 2 लफ्ज सारी कीमत थे। उन 2 लफ्जों में यह लिखा हुआ था, अपने आप को माफ करो और दूसरों को माफ करो। बस। अब अपने आप को, दूसरों को माफ करना समझ आती है, अपने आप को माफ करना समझ नहीं आती। कुर्बान जाएं हैदर करार शेर खुदा हजरत अली करम अल्लाह वजह करीम पे, जब उनके कातिल ने उन पे हमला किया तो आपने क्या फरमाया? फरमाया इसको एक तरफ रखो, पकड़ा गया, इसको गर्म खाना खिलाओ, इसको ठंडा पानी पिलाओ। हाय 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 हाय, उनकी अजमतें और उनके वकार और उनके हिल्म और उनकी माफी। लंबा वाक्य है। मैं कि अपने आप को माफ करो और दूसरों को माफ करो। दूसरों को माफ तो करना समझ आता है, अपने आप को माफ करना क्या है? अपने आप को माफ यह है कि अल्लाह ने मुझे जहां रखा है ठीक रखा है। अल्लाह मेरी तेरी तकदीर पे राजी हूं, रज़ई तो बिल्लाह रब्बन, रज़ई तो बिल्लाह। अल्लाह तूने मुझे जहां रखा है ठीक रखा है। मुझे मरीज रखा है तो इसमें कोई खैर होगी, मुझे गरीब रखा है तो इसमें कोई खैर होगी। अल्लाह तूने मकरूज रखा है, ठीक है, मैं कोशिश भी करता रहूंगा, मैं दुआएं भी मांगता रहूंगा, मैं अमाल भी करता रहूंगा, लेकिन तेरी रजा इसी में है। मैं राजी हूं, मैं राजी हूं, मैं राजी हूं। जब बंदा अपने आप को माफ करता है, वरना सारी उम्र अपनी जात से लड़ता है। देख वो वहां पहुंच गए, जमाना भी कहता है तू कहां पहुंचा, मां भी कहती है तूने क्या कमाया, या बाप को कहता है तूने हमें कमा के क्या दिया, और बाप के साथ गुस्ताखियां करता है। जिंदगी में अपने साथ लड़ता है, और अपने साथ लड़ते लड़ते अपने आप को बड़ी बीमारी में मुब्तला कर बैठता है। और अपने साथ लड़ते लड़ते सबसे पहले जो चीज जाती है वो शुक्र की जिंदगी जाती है। जो मौजूद होता है वो शुक्र खत्म हो जाता है।
موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا تو ایک بندہ ہے، اس کے پاس ستر چھپانے کے کپڑے بھی نہیں ہیں، اس نے ریت سے اپنے ستر چھپایا ہوا۔ موسیٰ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کو عرض کریں کہ میرے لیے کوئی رزق کی وسعت فرما دیں، رزق کی وسعت۔ اللہ کے حضور سے جب واپس آئے تو اللہ کہتے ہیں کہ شکر کر، تیری اللہ نعمتیں بڑھا دے گا۔ تو کہنے لگا میرے پاس ہے کیا جو میں شکر کروں؟ ہوا آئی وہی ریت بھی اڑا کے لے گئی۔ جب بندہ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا تو سب سے پہلے جو نعمت جاتی ہے وہ شکر جاتا ہے۔ سورا دن اپنے شکوے کرتا ہے، حکومتوں کے شکوے کرتا ہے، بادشاہوں کے شکوے کرتا ہے، لوگوں کے شکوے کرتا ہے، ساری زندگی اپنے ذات سے لڑتا ہے، گھر والوں سے لڑتا ہے، ماں باپ کو کہتے تو نے ہمیں دیا کیا ہے، ماں کو کہتا ہے، باپ کو کہتا ہے اس نے تو یہ پہنا ہوا ہے، میرے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو وہ برانڈ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ میں دو لفظ تھے اس کتاب کے اندر کہ اپنے آپ کو معاف کریں اور دوسروں کو معاف کریں۔ جب اپنے آپ کو معاف نہیں کرے گا ایک آگ میں جلے گا نا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ آگ ہی تو ہے اور کیا ہے۔ اس آگ سے پھر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال ہے نفرت پیدا ہوگی، چھیننے کا مزاج پیدا ہوگا، چھپٹنے کا مزاج پیدا ہوگا۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکے گا کہے گا اللہ اس سے چھین لے، میرے پاس نہیں تو اس کے پاس کیوں ہے۔ کھانا کھا رہے تھے نا تو اس نے کھانے میں تھوک دیا، اس نے کہا مجھے تو پرہیز ہے پر تم تو نہ کھاؤ۔ آگ پیدا ہوگی۔ اس آگ کے لیے اس دعا کے اندر خاص نقطہ بیان کیا ہے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ مجھے آگ سے بچا، وہ نفرت کی آگ، وہ کینے کی آگ، وہ بغض کی آگ، وہ گناہوں کی آگ، وہ جادو کی آگ، وہ جنات کی آگ، وہ نظر بد کی آگ، اور وہ یہ آگ کہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہا، اور وہ آگ میں دوسروں کو معاف نہیں کر پا رہا۔ اس دعا کے اندر عجب دنیا ہے، اس دعا کے اندر عجب کائنات ہے، اس دعا کے اندر راز ہی راز ہیں، راز ہی راز ہیں، راز ہی راز ہیں، راز ہی راز۔ یہ دعا ہے جس نے زندگی کو بہترین بنا دیا، اور مسنون دعا ہے۔ اس مسنون دعا کی طاقت اور تاثیر کو سوچیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میں 2 نفل بتایا کرتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، سورت فاتحہ کے بعد جو سورت ملانی ہے یہی دعا پڑھیں، کیونکہ یہ قرآنی دعا ہے، اور اس کو تکرار سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، پھر پڑھیں، بار بار پڑھیں، پھر پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور بہت زیادہ پڑھیں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع سجدے میں جائیں، پھر دوسری رکعت میں اسی دعا کو پھر پڑھیں، بار بار پڑھیں، پھر پڑھیں، بار بار پڑھیں، دل کی کیفیتوں کے ساتھ، وجدان کے ساتھ پڑھیں۔ کبھی یہ 2 نفل بھی پڑھ لینا زندگی میں، اگر معمول بنا لینا تو خوش قسمت ہوگے۔ اللہ جل شانہ دنیا بہتر نہیں بہترین کر دے گا، آخرت بہتر نہیں بہترین کر دے گا، اور جو دنیا آخرت کو جو چیز برباد کرنے والی ہے وہ آگ ہے۔ اسی اللہ پاک جل شانہ نے دونوں پیکج دے کے آخر میں اللہ نے کہا کہ اس آگ کا خیال کرنا ذرا، اور ہم نے آگ کو سمجھا شاید وہ جہنم کی آگ ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی سچ ہے، وہ بھی حق ہے، پر یہ آگ جو زندگی میں ہم نے پالی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو معاف کر اور دوسروں کو معاف کر، اپنے آپ کو معاف کر دوسروں کو معاف کر۔ میرے ساتھ ایک کلاس فیلو تھا، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے، 4تھی کٹھی پڑھتے تھے، 5ویں۔ اس کا باپ پلے دار تھا، مزدور پانڈی جو بوریاں اٹھاتے ہیں، اس کا گدھا ریڑی ہوتا تھا۔ میں ایک دفعہ اس سے ملا، میں نے اس کو ڈھونڈا، میں کہ میرے ساتھ بیٹھتا تھا، اس کو ڈھونڈا، اس کا نام مناسب نہیں، اب بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے، گھر میں اس نے کھولا ہوا ہے تھوڑا سا سلسلہ۔ میں ہو گیا، میں نے سلام کیا، اس نے مجھے صحیح چہرے سے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا شاید پہچانا نہیں، میں نے اس کا نام لے کر کہا میں طارق ہوں، کہہ رہا تجھے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے جب کہا نا اچھی طرح جانتا ہوں، اور اس جاننے میں جو نفرت کا لے جاتا، اوہو میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا کوئی ہے صحیح بات۔ میں بیٹھ گیا، اس نے مجھے نہیں کہا کہ بیٹھ،
میں نے کہا پانی پلا دو. کہہ رہے تیرے معیار کا پانی ہمارے پاس نہیں ہے, تو بڑا آدمی ہے. میں نے کہا بڑا ہوتا تو میں تجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا آتا. کہنے لگا بڑائی دکھانے کے لیے آیا ہے, بڑائی دکھانے کے لیے آیا ہے, مجھے متاثر کرنے کے لیے آیا ہے. میں تجھ سے کوئی متاثر نہیں, میں تجھ سے بندوں کا تھوکتا ہوں. غصہ بہت زیادہ, اتنا غصہ. اور پھر کہنے لگا پیشاب کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اچھا میں چپ کر کے بیٹھا رہا, میں سنتا رہا. میں نے کہا جاؤں؟ کہ تجھے کس نے بلایا تھا آنے کو, چلا جا. اچھا میں نے کہا میرے ساتھ باتیں تو کر, بچپن کی باتیں, چوتھی پانچویں اکٹھی پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے, کیا ہے پھر؟ میں نے کہا غصہ کیا ہے؟ کوئی میں نے تجھے ناراض کیا, تیرا میرا جھگڑا ہوا, بچپن سے کتنے سالوں کے بعد میں تجھ سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملنے آیا, تو اس نے صرف ایک لفظ کہا. انہوں نے کہا تو کون سا تیرا خوبصورت چہرہ تھا کہ تو ہم سے آگے نکل گیا؟ ہمارا چہرہ کون سا بدصورت تھا, ہم یہی کھڑے ہوئے, میں تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا. اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا تھا, اس لیے مجھے معاف نہیں کیا تھا. اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا تھا, اس لیے مجھے معاف نہیں کیا تھا. اسے آگ لگی, حالانکہ وہ بہت غریب باپ کا بیٹا تھا اور میں غریب باپ کا بیٹا نہیں تھا. وہ یہیں سے اندازہ لگا دیتا. میں نہیں کہتا میرا باپ کوئی نواب ریاستوں کا اسٹیٹ تھا, باپ دادا پر دادا سے کوئی تھوڑی سی خوشحالی تھی, وہ غریب, لیکن اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا. اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا. یہ آگ ہے, جو آگ مجھ پہ پیشاب ڈلوا رہی تھی, جو آگ مجھ پہ تھوک ڈلوا رہی تھی, جو آگ مجھ پہ نفرت کروا رہی تھی, یہ آگ ہے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, وہ عذاب میں مبتلا تھا, آگ کے عذاب میں مبتلا تھا. اس آگ کے عذاب نے اس کے اندر ایک نفرت چھونکی تھی, اس کے مزاجوں میں نفرت آ گئی تھی, نفرت آ گئی تھی کہ یہ اتنا آگے نکل گیا, یہ اتنا چلا گیا اور میں وہیں رہ گیا. اور تو قدرت کا نظام ہے, قدرت نے کس سے کیا کام لینا ہے؟ اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. نہ میں آپ کو اپنی کرامتیں کمالات بتاتا ہوں, میں تو ہر دفعہ یہی کہتا ہوں 4 بندوں میں میری شہرت ہے. میں اپنے آپ کو مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں, یہ میری موت بتائے گی میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا. موت سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا, نہیں کہہ سکتا. یہ موت بتائے گی میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا, دکاندار تھا یا ایماندار تھا, یہ موت بتائے گی. اللہ مجھے موت کے وقت مخلصوں میں شامل کر لے, اور انشاءاللہ آپ نے آمین کہی, اللہ کر دے گا. مجمع کی آمین, روزے داروں کی آمین, تاک رات کی آمین, پردیشیوں کی آمین, انشاءاللہ قبول ہے. پھر 1 دفعہ آمین کہتا, پھر کہتے موت کے وقت. مجھے اردو بازار میں کھڑا تھا تو مجھے کہنے لگا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں مسجد نبی میں گیا, اردو بازار کا ایک تاجر ہے, کہنے لگا میں مسجد نبی میں گیا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا قرآن شریف پڑھ رہا ہے. یہ تو وہ ہے جو سب سے بڑا بدماش اور فلاں 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 فلاں. ایک دم چینج, تبدیلی. میں بیٹھ گیا, میں نے تعارف کرایا, جانتے تھے. میں نے کیا ہوا؟ برکہ ایک واقعہ زندگی میں ہوا ہے. میرے بھائی کو جانتے تھے؟ ہاں جانتا تھا, مسجدیں بناتا تھا, مسجدوں میں آتا تھا, جاتا تھا, نیک تھا, بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اس کی زندگی یہی تھی. میری زندگی الٹی تھی, اس کی دوسری تھی. کہا کہ بیمار ہو گیا, بہت عرصہ بیمار رہا, بہت علاج کیے, لیکن اللہ کی طرف سے بیماری بڑھ گئی. آخری وقت میں کہنے لگا سب بیٹے بیٹیوں کو دوستوں کو سب کو بلاؤ, آخری وقت ہے میرا. سب کو بلایا اور کہا قرآن لے آؤ.
قرآن ہاتھ میں لے کے سب نے حیران ہوئے کہ دیکھیں آخری وقت میں قرآن میں کہنے لگا مولا میں نے ساری عمر تیری قرآن کی مسجدوں کی خدمت کی، تو نے مجھے مریض کر دیا، بیمار کر دیا، میں تجھے نہیں مانتا، تیرے قرآن کو نہیں مانتا۔ بھائی یہ کہا اور قرآن اس کے ہاتھ سے ایسے چھوٹ گیا اور گیا۔ آخری وقت میں پتہ چلے گا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ کہا کہ بس اس کے اس عمل نے مجھے بدل کے رکھ دیا، میں پھر بدل گیا اور میری زندگی بدل گئی، میں نے اپنے سارے کالے کالے کرتوت چھوڑ دیے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اس کو تو سوچا ہی کبھی نہیں۔ پڑھ لیتے ہیں، اس کو سوچا ہی نہیں کبھی۔ یہ اللہ نے مجھ فقیر پہ یہ بات کھولی، اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، پتہ ہے کھلی کب ہے؟ آج کی تراویحوں میں۔ عجیب بات، میں بار بار فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا تو قرآن پہ توجہ دیتا تھا، قرآن پہ پھر توجہ دیتا تھا، یہ دعا پھر یاد آتی تھی، پھر توجہ دیتا تھا، پھر یاد آتی تھی، پھر توجہ دیتا تھا، پھر، اور یہ کل پرسوں سے یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں بار بار ذہن میں آ رہی ہے، پھر ذہن میں آ رہی ہے، پھر ذہن میں آ رہی ہے۔ اور تراویحوں کے درمیان اندر خود نماز کے اندر وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ جو کھلی، دعا تو بار بار آ رہی ہے۔ یہ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ہے کیا؟ یہ صرف دنیا جہنم کی آگ نہیں، دنیا کی آگ میں چلتے چلتے خود بھی جل گیا، نسلوں کو بھی جلا کے چلا گیا۔ اس سے بچنا ہے، مانگنا بھی ہے، بچنا بھی ہے، مانگنا بھی ہے، نظر بھی رکھنا ہے۔ اعتکاف میں آئے ہیں آپ سب کو مبارک ہو، جو آج تشریف لائے ہیں ان کو مرحبا بھی ہے اور مبارک بھی ہے۔ خواتین تشریف لائے ہیں، میں آج دیکھا تو ایک بوڑھی اماں کو چھوڑنے آئے ہوئے تھے، بیٹوں کو ماتھے پہ پیار دے رہی تھی، مل رہے تھے، تو میں نے اسے چلتے چلتے پوچھا، میں نے کہا اعتکاف میں آئے ہیں؟ کہہ رہے ہاں۔ میں کہ واہ خوش قسمت ہیں، نصیبوں والے ہیں جو تسبیح خانے کے اعتکاف میں آئے ہیں۔ ہاں خیال کرنا، اعتکاف کے ادب آداب کا بڑا خیال کرنا، بیت الخلا یا اوپر نیچے تسبیح خانے سے باہر نہ جانا، احتیاط کرنا۔ یہ چند دن کا اعتکاف ہے، زندگی میں بہاریں اور برکتیں آ جائیں گی جتنا اعتکاف کے ادب آداب کا خیال رکھیں گے، جتنا اعتکاف کے ادب آداب کا خیال رکھیں گے، جتنا اعتکاف کے ادب آداب کا خیال رکھیں گے، اتنا زیادہ بہاریں پا کے، جھولیاں بھر کے، نعمتیں پا کے، رحمتیں پا کے، اور انشاءاللہ نسلوں کے لیے عزت رزق دولت کے دروازے کھلوا کے جائیں گے۔ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ محتاج بن کے آئیں، اعتکاف میں یہ نہ کہیں میں تو گھر میں وہاں سوتا تھا، یہاں مجھے یہ ہے، میں گھر میں یہ کھاتا تھا، یہاں یہ ہے۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گداہ شاہ جہان ہے۔ فقیر بن کے جو آیا ہے، فقیر بن کے رہا ہے، کسی نے پاؤں دے دیا، کسی کے پاؤں کی ٹھوکر لگ گئی، کسی وجہ سے نیند اکھڑ گئی، کوئی چھوٹی چھوٹی ناگواریوں کو سہتا گیا اور اپنے اعتکاف کو نہ توڑا، اپنے منہ کو زبان کو بند رکھا، صبر، حوصلہ، محبت، پیار بانٹتا گیا۔ ذکر تسبیح اعمال میں شیطان بہت نیند غالب رکھے گا، محفل کے دوران بھی، محفل کے بعد بھی، پھر کہے گا میری کمر میں درد ہے، میں بیمار ہوں، مجھے ٹیک دو، میرے آگے سے ہٹ جاؤ، میری ٹانگیں کمزور ہیں، مجھے جگہ کشادہ دو، مجھے کھلی جگہ دو۔ شیطان بڑی کہانیاں سنائے گا، نہ کرنا، ان 10 دنوں کے اندر کہہ لینا مولا کوئی جیلوں کا قیدی، کوئی ہسپتالوں کا قیدی، ہاں کوئی کچہریوں کا قیدی، کوئی کسی ظالم کا قیدی، سخی آج میں تیرے عشق کا قیدی ہوں،
वाह मौला वाह, इश्क का कैदी हूं, और कैदी को जो दे दिया जाए, कैदी को जहां सुला दिया जाए, कैदी को जो खिला दिया जाए, कैदी को जो पिला दिया जाए, कैदी को कहा जाए उठ जा, कैदी को कहा जाए बैठ जा, कैदी की अपनी जिंदगी नहीं होती। सखी तेरे और तेरे हबीब के इश्क का कैदी हूं मौला, तेरे और तेरे हबीब का इश्क का कैदी हूं मौला, तेरे और तेरे हबीब का इश्क का कैदी हूं, कैदी बन के आया हूं। और इंशाअल्लाह जब 10 दिन के बाद तेरे इश्क की कैद से निकलूंगा, गौर से सुनना जरा, 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद तेरे इश्क की कैद से जब निकलूंगा, इंशाअल्लाह मैं जिन्नात की जादू की कैदों से निकल जाऊंगा, मैं कर्जों बीमारी की कैदों से निकल जाऊंगा, मैं मुश्किलों परेशानियों की कैदों से निकल जाऊंगा, मैं रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश की कैद से निकल जाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी के अंदर की कैद से निकल जाऊंगा, मैं बेचैनी बेकली टेंशन की कैद से निकल जाऊंगा, मेरे मुकदमे कैद और परेशानियां इंशाअल्लाह ये कैदियों, इन कैदों के जंजीर टूट जाएंगे जब मैं अपने आप को तेरी और तेरे हबीब की मोहब्बत का कैदी बना लूंगा, तेरे इश्क का कैदी बना लूंगा। मेरी कोई चाहत नहीं, मेरी कोई बरकत मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरे कोई तुर्रा नहीं, मेरा कोई चौधरी मियां नहीं, मैं यहाँ फकीर बन के आया हूँ। हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके, हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके, फकीरां दे रोशन जमीरां तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जां असीरां तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नू डंगिया, मैं उन्हां प्यारी अखियां दे तीरां तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नू डंगिया, मैं उन्हां प्यारी अखियां ते तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी पलन लाले हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके, हाँ हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके। जो फकीर बन के आया किसी फकीर के पास, किसी दरवेश के पास, कहीं आस्ताने में, किसी खानकाह में, वो फकीर बन के आया, वो अमीर बन के गया। जो इज्जतों के ताज लेके आया, अल्लाह इज्जत के ताज गिरा देता है। अल्लाह कहते हैं अल मुल्क लिल्लाह, अल हुक्म लिल्लाह, अल अमर लिल्लाह, यहां मेरा अमर चलता है। खुशकिस्मत हैं आप एतकाफ में आए हैं। मैं एक बात फिर मुबारक देता हूं, जो पहले यहां बैठे हैं वो एतकाफ में हैं, और जो आज का मजमा आया है वो एतकाफ खवातीन और मर्दों का। बस यहां फकीर बन के मुझे जितनी जगह मिल जाए, करवट कोई हर्ज नहीं, मुझे खाना कोई हर्ज नहीं। आज मैंने इफ्तार किया आपके साथ, यकीन जाने इतना लजीज खाना था, और सादा रोटी, और अपनी गंदम पीसते हैं, और गंदम पीसने वाले जो कुरान पढ़ते हैं, जो तस्बीह करते हैं, जो जिक्र करते हैं, पकाने वाले जो जिक्र करते हैं, डालने वाले जो जिक्र करते हैं, खिलाने वाले जो जिक्र करते हैं, उठाने वाले जो जिक्र करते हैं, समेटने वाले जो जिक्र करते हैं, ये नूरी लुक्मे, नूरी खाने दिल में नूर समो रहे हैं। मुबारक हो आपको। हाँ, ये बरकतों का खाना है। और एक बात वजाहत कर दूं, ये खाना कोई सदका खैरात नहीं खा रहे आप, गौर से समझिएगा। क्यों? सादात के लिए, मालदारों के लिए, जो सदके देने वाले हैं उनके लिए सदका लग ही नहीं सकता। वो तो सदका देने वाले हैं, वो सदका खा कैसे सकते हैं? बड़ा एहतियात से चलिएगा, ये आपको वजाहतन अर्ज कर रहा हूं। यहां कोई सदका खैरात नहीं है, वो फकरा मुहाजिरीन मसाकीन के लिए होता है। आप में से बेशुमार ऐसे यहां बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदों वाले बैठे हैं, मुझे पता है, बड़े बड़े ओहदों वाले, रैंक वाले बैठे हैं, मेरे इल्म में है। फकीर बन के बैठे हैं, दुर्वेश बन के बैठे हैं, अपने आप को चटाइयों से सी लिया है। अपनी हैसियत को मिटा दे, अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम, पढ़े मेरे साथ, व फिल आखिरति हसनतम वकिना अज़ाबन नार, वकिना अज़ाबन नार, वकिना अज़ाबन नार। बस ये जिंदगी का सफर है। इस दुआ की तासीर को समझें, फिर इसको पढ़ें, पढ़ के इसमें डूबें, और डूबने के बाद इस पे खो जाएं। उतनी अल्लाह की तरफ से बाज ऐसी ऐसी चीजें अंदर दिल पे उतरती हैं, बाजों का डर जाता हूं कि मौला मैं इस काबिल। अल्लाह की तरफ से इल्म मिलता है,
اس لیے فرمایا مانگتے رہا کرو، اے اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما۔ اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ میں نے ساری زندگی مانگا ہے، آج بھی محتاج اور طالب علم ہوں۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ یہاں تسبیح خانے میں مقیم ہیں۔ اب یہاں سے منوا کے جانا ہے، اللہ سے خزانے سے لے کر جانا ہے، اور لے کر جانے والا وہ ہے جو صبح سے لے کر شام تک عاشقانہ، یہ عاشقانہ تک ہمارا اعتکاف ہے، عاشقانہ اعتکاف ہے۔ عشق وہاں آتا ہے جہاں عقل کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ عقل والے تماشا دیکھتے رہے، تماشا، اور عشق آگ میں کود پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کا عشق آگ میں کود پڑا، عقل والے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں اس ابراہیم علیہ السلام کی آگ کی جگہ پہ گیا ہوں۔ عقل والے آج تک پاگل ہیں، یہ ہوا کیا تھا؟ پھر عشق والے یہ اعتکاف، آخری عشرے کی حاضری، آخری عشرے کا تسبیح خانے میں قیام عاشقانہ ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اور عقل والا ہوا تو چیزوں پہ اعتراض، اٹھنے پہ اعتراض، بندوں پہ اعتراض، اس پہ اعتراض۔ الحمدللہ آج 20 تراویاں ہو گئی ہیں، 20 ہو گئی ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہاں مجمع بہت بڑا مجمع رہ رہا ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا کسی نے۔ نعمتیں کہتے ہیں گھر سے زیادہ ملی، عزت گھر سے زیادہ ملی، وقار گھر سے زیادہ ملی، صفائی سلیقہ ستھرائی گھر سے زیادہ ملی۔ الحمدللہ جو یہاں 20 دن سے رہ رہے ہیں، اور الحمدللہ عید کے بعد وہ جائیں گے اور ایک جذبہ لے کر بیٹھے ہیں، اور جذبہ آپ ان کا مزید آج پھر زندہ ہو گیا ہے۔ ہاں، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج آنے والا مجمع جو 20 دن پہلے سے بیٹھے ہیں، وہ مجمع آپ کا مہمان ہے، آپ میزبان ہیں۔ اس مجمع کو لینا، اس کو بٹھانا، اس کو سلانا، اس کو محبت دینا اور پیار دینا۔ اور جو نیا آنے والا مجمع ہے وہ ایک عزت اور احترام اور ادب لے کے آیا ہے تسبیح خانے کا، اور انشاءاللہ وہ عزت، احترام اور ادب سے تسبیح خانے میں رہے گا۔ کیوں؟ آسیں لے کے آئے ہیں، امیدیں لے کے آئے ہیں، جذبے لے کے آئے ہیں کہ تسبیح خانے میں 10 دن کے بعد جب عاشقانہ اعتکاف کر کے جائیں گے تو اللہ جل شانہ پھر اس عشق کی برکت سے زنجیریں توڑ دے گا، جادو، جنات، بندشیں، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، ناکامیوں کی۔ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ حضرات چونکہ اب آخری راتیں ہیں، آپ حضرات کی خاطر ترتیب بنائی ہے کہ رات 11 بجے کے بعد لائٹیں بند، آرام کریں۔ جس نے ذکر کرنا ہے، تسبیح کرنا ہے، نیچے 1 نمبر ہال میں ذکر تسبیح کی ترتیب ہے۔ محفلیں لگا کے نہیں، موبائل پہ نہیں، بس اب تو میں اور اللہ ہو، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ اب تو 11 بجے کے بعد آرام ہے، جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، سکون ہے۔ اور اگر طبیعت چاہ رہی ہے نفل تسبیحات کے لیے 1 نمبر ہال میں جا کے، باقی لائٹیں بند، گیٹ بند، دروازے بند، ہر چیز بند۔ کیوں؟ اب اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ہم تو مولا عشق کے قیدی ہیں، تیرے اور تیرے حبیب کے عشق کے قیدی ہیں، یہ تسبیح خانے کے مقیم نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب کے عشق کے کیا ہیں؟ اللہ اس کے حبیب کے عشق کے کیا ہیں؟ ہاں، میں اللہ اور اس کے حبیب کا عشق کا قیدی ہوں۔ جو اپنے آپ کو عشق کا، اس کملی والے کے عشق کا قیدی بنا لے، اللہ اس کی قیدوں کو ختم کر دے گا۔ وہ قید، بندش، وہ پریشانی، وہ قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، بس اللہ کر دے گا۔ اللہ کہے گا 10 دن تو نے میرے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، انشاءاللہ تجھ پہ وہ لٹاؤں گا، تیری نسلوں کو آباد کر دوں گا، شاد کر دوں گا، بامراد کر دوں گا، ان کے بخت بلند کر دوں گا، ان کے نصیب عظیم 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 تر کر دوں گا، اور انشاءاللہ ان کے لیے رزق وسیع کر دوں گا۔ ساری دنیا مہنگائیاں کہیں گی، مہنگائیاں تمہارے لیے ہیں، میرے لیے نہیں ہے، ناممکن تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ فیصلہ ہو گیا۔ ایک چیز میں نے آپ حضرات کو 17 رمضان کو ایک تحفہ دیا تھا، 17 رمضان کو
मैं चाहता हूं जो नया आने वाला मजमा है उनको भी एक तोहफा दे दूं। 17 रमजान को मैंने खास तोहफे दिए जिन्होंने पहले रमजान से अपने रूहानी तिब्बी तजर्बात, कोई तावीज़ का फ़ायदा, कोई दम का फ़ायदा, कोई नक्श का फ़ायदा साफ साफ लिखा, वाज़े लिखा, कापी मिल रही है और फार्म भी मिल रहा है नीचे, ठीक, वो लिखा। फिर मैंने क्या किया था, 17 रमजान में यहां रख के उन्हें वो इनायात दी, हत्ता कि वो तोहफे दिए जो 1984 से मेरे मुशाहिदे तजर्बे, मेरे तजर्बे में थे। 2024 40 साल के बाद मैंने वो चीजें उनको बख्श दी। और याद रखिएगा, बख्शी हुई चीजें नस्लों में चलती हैं। आप वो खुशकिस्मत हैं 17 रमजान वाले, बख्शी हुई चीजें कहां चलती हैं? नस्लों में। क्यों कहते हैं? ये हमारी नस्लों को किसी फकीर ने, किसी दरवेश ने बख्शी थी। बख्शी हुई चीजें नस्लों में चलती हैं। किस में चलती हैं? किस में? हाँ, सोना नहीं है, ऊंगना नहीं है, बख्शी हुई चीजें कहां चलती हैं? नस्लों में चलती। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं एक और तोहफा भी आपके लिए करूं और उसका फिर मैं 29 रमजान को दूं। बहुत से लोग कहने लगे कि हम शामिल नहीं हो सके, बहुत से कहने लगे हमें इनायात नहीं मिली। उनको क्या खास तोहफा दूंगा? जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया था, क्या आपको गुमान था कि इतने बड़े तोहफे मिलेंगे? गुमान था? मैंने पहले कहा था इस दफा मैं तोहफा नहीं दूंगा, वो दूंगा जो आप सोच नहीं सकते, वो मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मिला। अब ऐसा करें, आप में से जितने मजीद रह गए थे वो भी, और जो नए हजरात आए हैं, आपका कोई रूहानी तजर्बा, किसी वजीफे का, किसी टोटका का, कोई नक्श, कोई तावीज का तजर्बा और किसी दम का तजर्बा, कोई दम, ये साफ साफ लिखें। एक कागज फार्म का ले लें, दूसरा ले लें, तीसरा ले लें, चौथा ले लें। यह फार्म का कागज, उसमें अपना मुकम्मल नाम, पता, मोबाइल नंबर, हर चीज ये इस्तकबालिया पे जमा कराएं। और 29 रमजान को फिर मैं वो यहां रखूंगा और फिर वो तोहफे दूंगा जो गुमान से बाला तर हैं। ये आपके लिए बहुत से अहबाब का इसरार था कि हम शामिल नहीं हो सके, हम थे नहीं। आज ये मैं मौका दे रहा हूं, आज ये मैं आपको सादतें दे रहा हूं कि अपनी तहरीरें ज्यादा से ज्यादा लिखें और फिर ये नहीं वो मुझ तक रहेंगी, वो आपकी नस्ल दर नस्ल सदका जारिया बन जाएंगे। पूरे आलम को उससे नफा होगा, पूरी दुनिया को उससे नफा होगा और पूरी दुनिया को उससे खैर मिलेगी, पूरी दुनिया को उससे नफा। और ऑनलाइन जो हजरात हैं वो भी भेज सकते हैं, लेकिन आज की डेट में और 29 रमजान को जो है वो इंशाल्लाह ये तोहफा मिलेगा। आते हैं आज के हमारे रूहानी पैकेज हैं और बहुत सारे रूहानी पैकेज हैं आज के, हमारे बहुत सादा रूहानी पैकेज हैं आज के, और बहुत तोहफे हैं और इतने हैरत अंगेज तोहफे हैं कि आप माला माल हो रहे हैं आज की रात में। आपके बख्त, नसीब, मुकद्दर, तवंगरी, इज्जत, दौलत, बरकत इंशाअल्लाह। ये लिफाफा आपके पास है, निकालें, सामने रखें। हाँ, कोई आजमूदा अमल। मैंने अर्ज किया था कि आपको आखिरी अशरे में एक अमल दूंगा, एक खिदमत दूंगा, अमल दूंगा, एक खिदमत और अमल दूंगा कि आपका अपना कोई आजमूदा अमल हो जो आज तक खता ना गया हो, कोई नफिल हो, कोई तस्बीह हो, कोई वजीफा हो, कोई सजदा हो, कोई आपका अपना आजमूदा अमल हो, वो दिलजुई के साथ, पूरे दर्द के साथ और पूरे गम के साथ, दिलजुई के साथ, पूरे दर्द के साथ और पूरे गम के साथ बेतवज्जी से करने वाले से फायदा होगा क्या? क्योंकि इंसान को वही अपना दर्द लगे तो उसका अमल में तवज्जो क्या होती है? जब अपना दर्द ना लगे तो फिर तवज्जो नहीं होती, फिर सिर्फ खाना पूरी होती है। ये ना हो, तस्बीह खाने के लिए नियत करके, मेरा और मेरी नस्लों की नियत करके। और ये आपके हमेशा तजर्बात में है, हमेशा तजर्बात में है कि जिसने तस्बीह खाने मेरी और मेरी नस्लों की नियत करके पढ़ा, उसको लौट के वो मिला जो गुमान से बालातर। दीवार पे जिस जोर से गेंद को मारेंगे उसी जोर से वापस आएगी। यह एक बहुत बड़ा मजमा है और सिर्फ ये नहीं, पूरी दुनिया का मजमा निजाम है। तो आज से ये शुरू कर दें। मैं अमल नहीं बताऊंगा
अच्छा, फिर आप मुझे भी नहीं बताएंगे, सिर्फ एक काम कर देंगे, सिर्फ एक काम, एक कागज लिख के 29 रमजान को अपना और वालदा का नाम वो लिख के सिर्फ जमा करा देंगे कि हजरत हमने ये अमल किया, हमारा ये अमल आजमूदा है, इतनी बार किया, आपकी नस्लों और तस्बीखाने के सारे निजाम की नियत करके सिर्फ आप उसके बाद जाने, फिर वो कागज होंगे और मेरी तन्हाइयां होंगी और फिर अल्लाह होगा, बस खत्म, अगला लफ्ज नहीं। फिर वो कागज होंगे, मेरी तन्हाइयां होंगी और अल्लाह होगा, और फिर देखें कि आपके काम कैसे बनते हैं। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। बस ये अमल मैंने दे दिया और एक दफा कहा है, आज फिर नहीं कहूंगा, बस कह दिया। आपका 2 दिन से इसरार चल रहा है मेरे साथ, 2 दिन से, आज मैंने तरीका बता दिया। फिर कहूं, जो आपका आजमुदा कोई अमल है, कोई वजीफा, कोई तस्बीह, कोई जिक्र, कोई नफल, जो आजमुदा है, किसी मकसद के लिए आपने आजमाया, पाया, बस वो अमल भी वजाहत से लिख दीजिएगा कागज पे, और वो भी ये तहरीर इलहदा हो, उसमें वालदा का नाम, अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता, वो इलहदा लिख दीजिएगा। उस पे निशान लगाएंगे एक खास। क्या निशान मुकर्रर करें? उस पे ऊपर एक खास निशान लगाएंगे। क्या निशान? हाँ, 5 कोनों वाला बड़ा सारा स्टार बना देंगे, ठीक? हाँ, तहरीर के कोने में बड़ा सारा 5 कोनों वाला स्टार बना देंगे, और मुझे पता चल जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरी अशरे में अपने आजमूदा अमल किए, उसमें अपना और वालदा का नाम लिख दीजिएगा। मुझे वो उस तहरीर की समझ आ जाएगी, वो फिर तहरीर हम जुदा कर लेंगे, फिर वो मैं होगा, मेरा अल्लाह होगा, मेरी तन्हाई होगी, पर मुझे अपने ऊपर मान नहीं, उस करीम की रहमत का मान है, ना अपनी विलायतों के कोई दावे है। मैंने बड़े तजर्बे किए हैं, काम हो जाते हैं इंशाअल्लाह। वो मैं आपकी वो तहरीरें सारी 29 रमजान को वो स्टार वाली यहां रखूंगा, और फिर उस पर भी कुछ फैसले होंगे इंशाअल्लाह। आए हम आपको, ये आपके पास लिफाफा है, इस लिफाफे में रुई है और बेरी के पत्ते हैं। कहां कहां बेरी के पत्ते, कहां बेरी के पत्ते, कांटों के साथ इकट्ठे कर करके लिफाफे बना बना के आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अब करिए तस्बीह खाना, यकम रमजान से लेकर अब तक आपको तोहफे दिए जा रहा और दिए जा रहा, तोहफे दिए जा रहा हा, तोहफे दिए जा रहा। खुशकिस्मत होगा जो ये तोहफों की कदर करेगा, अम्मा तक पहुंचाएगा, तोहफे दिए जा रहा। तो ये अमल है, इस अमल को हम करेंगे इंशाअल्लाह अभी बैठ के। ये 7 बेरी के पत्ते हैं और इसमें थोड़ी सी रुई है, निकालें, बाहर निकालें, लिफाफे में पैक कर दी है। रुई निकालकर इलहदा करें, पत्ते उसमें रहने दें, पत्ते रहने दें, सिर्फ रुई निकालें, पत्ते रहने दें, सिर्फ रुई निकालें, पत्ते रहने दें। अभी रुई को आप अपने गोद में रखें। पहले, सबसे पहले हमारा जो अमल होगा वो बेरी के पत्तों का अमल होगा। उसे दाएं हाथ में बेरी के पत्तों का लिफाफा रखें। और आपको इल्म है कि बेरी के पत्ते मैयत को क्यों नहलाते हैं? पता है मैयत को बेरी के पत्तों से क्यों नहलाते हैं? और बेरी जन्नत का दरख्त है, सिदरा, लेकिन फर्क इतना है कि वहां कांटे नहीं होंगे। बेरी के पत्तों के साथ मैयत को क्यों नहलाते हैं? एक बहुत बड़े दानिशवर ने लिखा है, बेरी के पत्तों में इतनी शिफा है, इतनी रूहानियत है, इतनी तासीर है कि अगर बेरी के पत्तों से बंदा यकीन के साथ मैयत को नहलाए, उठ के बैठ जाए। ये रूहानियत के लिए, ये लाइलाज बीमारियों, दुखों, तकलीफों के लिए ये बेरी के पत्तों का अमल है, और ये सदियों से चला आ रहा है। मोतबर किताबों में इसके हवाले हैं। मेरा कोई अमल हवाले के बगैर, सनद के बगैर, लिंक के बगैर, रेफरेंस के बगैर नहीं है। और उसके लिए फेसबुक, व्हाट्सएप पे हमारा अकाबिर पर एतमाद, वो देखें,
और ये बेरी के पत्तों का अमल ये बाकायदा मुस्तनद किताबों से साबित है। ये रोई का अमल मुस्तनद किताबों से साबित है। मैं ऐसे अमल ढूंढ ढूंढ के लाता हूं जिसमें शिरक ना हो, जिसमें बिदत ना हो, जिसमें गैरुल्लाह ना हो, और ऐसे ऐसे अमल जिसमें खालिस अल्लाह की जात का तारुफ और ताल्लुक हो। बेरी के पत्तों के अंदर क्या तासीर है, बेरी के पत्तों के अंदर क्या ताकत है, और बेरी के पत्तों में क्या दौलत, इज्जत और अजमत है, आप गुमान नहीं कर सकते। बेरी के पत्तों में, और बेरी के पत्तों से नहलाने में फिर क्या कमाल मिलेगा, इससे क्या जंजीरें, क्या जादू बंदिशें, क्या अंदर के खोट, क्या अंदर के रोग, क्या तकलीफें टूटेंगी, ये अल्लाह की रहमत फिर आपको खुद बताएगी, ये अता खुद बताएगी, ये नेमत खुद बताएगी कि बेरी के पत्तों में है क्या, और बेरी के पत्तों में ताकत क्या है, और बेरी के पत्तों में तासीर क्या है। ये वो नेमत है जो अल्लाह ने आपको दी है। आए फिर इसमें अमल करते हैं। और अमल क्या करते हैं? हज़ाली करमल्लाहु वजहो 21 रमजान में, 21 रमजान क्या है हज़ाली की? उस मस्जिद में मैं गया हूं जहां हज़ाली पे जालिम ने हमला किया था, उस मस्जिद में गया हूं। क्या मकाम था उन हस्तियों का, क्या वकार था उन हस्तियों का, क्या अजमत है उन हस्तियों की। हज़ाली का फरमान है, किसी ने पूछा हजरत वो हर्फ बता दें, वो इस्म बता दें जिस हर्फ और इस्म के पढ़ने से जो मांगे फौरन मिल जाए। फरमाया वो इस्म है या जाहिरो, पढ़ो। हाँ, फरमाया वो इस्म क्या है? फरमाया कि किसी ने, साइल ने पूछा आका वो इस्म बता दे जिसके पढ़ने से जो चाहे मिल जाए, जो गम टलवाना चाहे, जो दुख टलवाना चाहे, जो मुसीबत दूर करवाना चाहे, जो नाकामी खत्म कराना चाहे, जो जादू जिन्नात बंदिशें असरात और हर चीज। फरमाया वो इस्म है क्या? आज वही इस्म पढ़ रहे हैं। उस हस्ती की आज अलविदाई जिंदगी का निजाम है, लेकिन वो मरते नहीं है। बोलिया असी मरना नहीं, गो रुपया कोई हो। ये हस्तियां मरती नहीं हैं, ये हस्तियां मरती नहीं हैं। तो दाएं हाथ में रखें, दाएं हाथ में रखें, और हमने या जाहिर और सांस रोक के पढ़ना है, तवज्जो ध्यान के साथ। और हमने 3 सांस पढ़ना है, 3 सांस। अभी नहीं पढ़ना, सुने मेरी बात। सांस रोक के पढ़ते हुए अपने गम, अपने दुख, अपनी तकलीफें, अपनी मुश्किलें, अपनी नाकामियां, अपनी परेशानियां, अपने हालात, उनका तसव्वुर करके या जाहिर सांस रोक के पढ़ेंगे। और मैं फिर कहूं, ये बेरी का अमल या जाहिर सनद से मेरे पास इसकी सनदें हैं, किताबों में हवाले हैं, और बेरी के पत्तों के बाकायदा मेरे पास हवाले हैं। मैंने उस दिन एक बंदे से शिकवा किया, मैंने कहा तूने बड़ों को पढ़ना छोड़ दिया, अकाबिर को पढ़ना छोड़ दिया, अपने बुजुर्गों को पढ़ना छोड़ दिया। जब उनको पढ़ना छोड़ दिया, तुझे नजर आता है कि ये चीज कहां लिखी है? व्हाट्सएप पे तो, मोबाइल पे तो लिखी नहीं, जहां लिखी है वहां तो पढ़ता नहीं है, जहां लिखी नहीं सारा दिन तो वो पढ़ता है, फिर कहते हैं कहां लिखी है। तो इस अब अमल को हम शुरू करने लगे हैं, तवज्जो से, सर झुका के, दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से। और हम पढ़ेंगे दिल के अंदर अंदर, या जाहिर हो। पढ़ना शुरू कर, ऊंची आवाज में नहीं, सांस रोक के। जब सांस टूटे उसके बाद इन पत्तों पे दम करें, फिर अगला सांस, फिर पत्तों पे दम करें, फिर अगला सांस, 3 सांस पत्तों पे दम करें। अमल शुरू करें।
आमीन। माशाअल्लाह। ये आपको इल्म है कि हमने कागज वाले लिफाफे में क्यों दिए हैं पत्ते आपको? शॉपर में पत्ते खराब हो जाते हैं, कागज लिफाफे में सूख जाएंगे, खराब नहीं होंगे। आप अपने मकाम पे जब ईद के बाद तशरीफ ले जाएंगे, इन पत्तों को आपने पानी में उबाल लेना है। इन पत्तों को पानी में उबाल लें और पानी का एक मग लेकर उसमें और पानी शामिल कर लें, इससे नहाएं। पूरा घर नहाए, पूरा घर नहाए। हर फर्द इस पानी से एक बार नहाएगा, हर फर्द। और घर जाके यह अमल करना है। खून के अंदर की रगों में, हड्डियों के अंदर में, बाल बाल में से बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलें और जादू असरात को इंशाअल्लाह यह नहला देगा, खत्म कर देगा, निकाल देगा। और इस अमल का हदिया 21 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक है। इसके दरमियान में जितना दिल चाहे दे दें। 21 रुपए से लेकर 2100 रुपए है, जितना जिसकी जेब इजाजत दे, यह अमल है। आए हम अब रुई का अमल करते हैं। रुई को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। पहले मुझसे रुई का तरीका आप सुन लें। रुई के 2 हिस्सों को तकसीम करके रुई को कानों में रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, डूब कर दिल में, आंखें बंद करेंगे, कानों में रखेंगे, डूब कर दिल में या समीओ या बसीरो पढ़ेंगे। सांस नहीं रोकना। अमल के इख्तिताम पर मैं आमीन कहूंगा, आमीन कहूंगा। और इस तसव्वुर के साथ कि या अल्लाह तू जानता है कि मैं कितना दुखी हूं और कितना गंदगियों में लिथड़ा हुआ हूं। अल्लाह तो मेरे सब बीमारियों और तकलीफों को निकाल दे और मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दे। फिर आप अमल के बाद इस रुई को अपने पास रखेंगे। क्या करेंगे? महफूज रखेंगे और 11 मरतबा या समीओ या बसीरो पढ़कर दम करें और कानों में डालकर लेट जाएं। 3 दिन ये अमल करना है घर जाके अपने मकाम पे। 3 दिन के बाद इस रुई को जला देना है। 3 दिन के बाद रुई जला दे इस नियत से कि तमाम बीमारियां, मुसीबतें, तकलीफें, जादू असरात जल गए। और इस रुई में और रुई नहीं मिलानी। घर के अफराद ज्यादा हैं तो उनके कानों में रुई रखें। अगर रुई छोटी हो तो कान के इस हिस्से में फंसा दें, कहीं कान के अंदर ना चली जाए। ठीक, बड़ी है तो कान के अंदर रख के सो जाएं और शामिल न करनी। घर का हर फर्द इस रुई को 2 हिस्सों में अभी करके हमने कान में, घर जब ले जाएंगे अगर अफराद ज्यादा हो, थोड़ा थोड़ा सबके कानों में, थोड़ा थोड़ा सबके कानों में जो है डाल के रात को सोना है। और सिर्फ इसके ऊपर 11 क्या पढ़ना है? या समीओ या बसीर, बस इतना पढ़ना है। और ये रोजाना करना है 3 दिन। सिर्फ कानों में 3 दिन डाल के सोना है, सुबह निकाल देना है। हर बंदा अपनी रुई डालेगा और 3 दिन के बाद रुई जला देनी है, सब चीजें जल जाएंगी। आए फिर इसको कानों में रखें और कानों में सिर्फ बस रख दें, अंदर दबाना नहीं है, अंदर रख दें और 11 बार दिल की गहराइयों से पढ़ें या समीओ या बसीरो। आपने गिनना नहीं है, गिनना मैंने है, आपने बेशुमार पढ़ना है। अब रुई निकालें, हाथ पे रख के इस पे फूंक मारें और अपने लिफाफे में रख दें। अब इसका हदिया, अमल हो गया, मुबारक हो। इसका हदिया, पहले अमल का हदिया था 21 रुपए से लेकर, इसका अमल है 27 रुपए से लेकर 2700 तक। इसका हदिया है 27 रुपए से लेकर 2700 तक। ये बहुत बड़ा हदिया है और मुबारक अमल है और सादतमंद अमल है। आज हमारा हुरूफ तहज्जी का, जो हजरात नए आए हैं वो फौरन हुरूफ तहज्जी का अमल करें। बहुत ताकतवर अमल है, किस्मत को बदलने, मुकद्दर को बदलने का। जो
आज आए हैं वो पिछले हरूफ तहज्जी जो हैं वो पुर खुद कर लें जितने उनके रहते हैं हरूफ तहज्जी, और एक एक हरूफ तहज्जी का टुकड़ा फाड़ के बाहर मटका पड़ा है उसमें डालेंगे। जिनके हरूफ तहज्जी रह गए हैं जो आज तशरीफ लाए हैं, ये पूरे महीने से अमल हो रहा, ये पूरे महीने से अमल हो रहा, ये पूरे महीने से अमल हो रहा। जो आज आए हैं वो पिछले अपने हरूफ अपने दिल की मुरादों को पुर करके एक एक करके मटके में डाल देंगे। और आज हमारी दिल की मुराद है जो मैं बयान करूं, उसके बाद एक मैं अर्ज करता हूं, बाकी आप। अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली दुआ की 100% तासीर अता फरमाओ। ठीक है। और इससे पहले हम दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं, इस अमल को तासीर देने के लिए, अल्लाह के नाम ताकत देने के लिए पढ़ेंगे। मेरे साथ अंदर के दर्द से दिल की गहराइयों से पढ़ेंगे। या जलीलो या जमीलो या जलीलो या जलीलो या जमीलो या जलीलो या जमीलो या जलीलो या जमीलो या जलीलो या जमीलो या जलीलो। आमीन आमीन। लिखना शुरू करें। रूहानी रोशनाई का पेन आपके पास होगा, और जिन हजरात को लिखना नहीं आता वो इस नक्श के ऊपर उंगली बस फेरते जाएं और अपनी दिल की मुरादें दिल में अल्लाह से अर्ज करते जाएं। ये नक्श बाहर इस्तकबालिया पे फ्री मिल रहा है, इस्तकबालिया पे आज अगर नहीं लिया ले लें और लिखना शुरू करें अपने दिल की मुराद। आज हमारा नक्श जो है काफ है, काफ 2 नुक्ते वाला। माशाअल्लाह। तवंगरी कशकोल का अमल है। कौन हजरात नए आए हैं जिनके पास कशकोल नहीं है, कटोरा नहीं है? माशाअल्लाह सबके पास है, माशाअल्लाह सबके पास है आपके पास? सबके पास है। ये अमल बहुत ताकतवर है। ये वो गुठलियां हैं जिन पे लाखों करोड़ों दरूद पढ़ा गया, ये वो गुठलियां हैं जिन पे करोड़ों अरबों सूरत कुल हो वल्लाह कलमा जिक्र पढ़ा गया, और ये वो गुठलियां हैं जो रोजेदारों के मुंह से निकली, फिर हम इन गुठलियों को महफूज करते हैं। ये वो गुठलियां हैं जो बाबरकत गुठलियां हैं। और आप जब रमजान के बाद घर तशरीफ ले जाएंगे, रमजान के बाद घर तशरीफ ले जाएंगे, रमजान के बाद, तो ये गुठलियां साथ हरगिज ना ले जाएं, कहीं नुकसान ना हो जाए। ये कशकोल भी आपका, कटोरा भी आपका और थैली भी आपकी। ये आपको इंशाअल्लाह तस्बीह खाने की तरफ से हदिया है, ये आपका अपना है। जब तशरीफ ले जाएंगे और फिर इसी थैली में जितने भी हमारे आज रात का हमारा अमल है 313 बार सूरत कौसर का इसी थैली पे पढ़ें। मुकद्दर नसीब का अमल है, हर साल पढ़ते हैं। और इसी थैली में रकम रखें, और जो तेब में पहले वाली थैली है वो घर रखें, उसमें घर पैसे रखें। और यह थैली बहुत बाबरकत थैली है। और जो बंदा इस अमल पे, यानी इस कशकोल गुठलियों वाले अमल पे रमजान में है, सिर्फ रमजान के बाद नहीं, तस्बीह खाने में ही यह अमल है, 7 बार 24 घंटों में वक्फे वक्फे से 7 बार
صرف 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو اسی ترکیب سے پڑھے گا جس ترکیب سے ہم پڑھیں گے. انگلیوں پہ پڑھنا ہے صرف 45 بار. یہ ہماری جو انگلیاں نا ان میں خانے 15 ہیں، 3 دفعہ پڑھیں گے 45 دفعہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھونک مار کے ان گٹھلیوں پہ ہاتھ پھیر کے یہ پھر گٹھلیوں کی برکت چہرے اور بدن پہ پھیرنے ہیں. یہ ہمارا تونگری کشکول ہے. کبھی یہ در در کا کشکول ہی نہیں رہے گا. اس کے بڑے کمالات، بہت فائدے ہیں. اس عمل کے حیرت انگیز فائدے ہیں. یقین سے کرنے والا، درد سے کرنے والا، اعتماد سے کرنے والا اور دل کی گہرائیوں سے کرنے والا کبھی خالی نہیں جائے گا. آج یہ کشکول ہے، اللہ اس کی نسلوں کو کشکولی ہونے سے بچائے گا. کہو آمین. اللہ اس کی نسلوں کو منگتا ہونے سے بچائے گا اور انشاءاللہ اس کا کشکول کبھی خالی نہیں رہے گا. رزق سے، دولت سے، عزت سے، برکت سے، صحت، تونگری، بخت اور مرادوں سے خالی نہیں رہے گا. یہ وہ عمل آپ کو تحفتاً دیا جا رہا ہے اور پورے رمضان سے کیا جا رہا ہے. آئیں تھیلی کو تائیں ہتھیلی پہ رکھیں، اس کے اوپر کشکول رکھیں اور دل کی گہرائیوں سے ڈوب کر اول آخر 1 بار درود پاک اور 45 بار جھک کے اپنے مشکلات، مسائل، پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں. یا قادر ہو یا نافع ہو. اللہ قبول فرمائے. بہت سعادت مند عمل کیا، بہت بابرکت عمل کیا. مجرمانہ حاضری ہے. روز اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مجرم بنا کے پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم سے دنیا میں بڑا مجرم کوئی نہیں ہے. تیرے سامنے مجرم بن کے آئے ہیں. جو اعتراف کر لیتا ہے، جو مجرم بن جاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. ہمارا دنیا کا اصول ہے جو اپنے آپ کو مجرم کہہ دے یا معافی ہو جاتی ہے یا سزا ختم ہو جاتی ہے یا تھوڑی ہو جاتی ہے. اے اللہ ہم مجرم ہیں اور تو شہنشاہ اور کریم ہے اور تو ہماری غفلت کو معاف کر دے، غفلت کو معاف کر دے، غفلت کو. تو مجرمانہ حاضری میں دل کی کیفیتوں اور پورے جذبے کے ساتھ، اور آپ کو علم ہے جو یہ لفظ پڑھ رہے ہیں نا، ان لفظوں کے اندر بہت طاقت ہے. یہ لفظ کروڑوں لاکھوں لوگوں کے آزمودہ ہیں. مجرمانہ حاضری میں جائیں اور دل کی کیفیتوں، اپنے درد، مسائل، مشکلات اور اپنی پریشانیوں کے اللہ کے سامنے پیش کر کے سر جھکا کے پڑھیں گے. اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر. اب اس بدن کو پورے بدن پہ ادب کے ساتھ دعا کا وقت ہے. دعا سے پہلے کچھ تھوڑی سی درخواستیں کروں گا اور بہت توجہ سے سنیے گا. اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں. کل میں نے اتنے سارے موبائل جمع کر کے دیے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اپنی چیزوں کی حفاظت کریں. کہیں قیامت کے دن جو ہماری وجہ سے چور بنا یا جس نے ہماری چیز کا نقصان کیا اور وہ گناہگار ہو گیا، کہیں وہ ہمیں قیامت کے دن پکڑا نہ دے. یا اللہ یہ بندہ اس کی غفلت کی وجہ سے، اس کی غفلت کی وجہ سے، اس کی غفلت کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، اس کی غفلت کی وجہ سے. تو میری درخواست ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ ضرور اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں.
कहीं हमारी गफलत से कोई गुनाहगार ना हो जाए और क़यामत के दिन हमारी पकड़ का जरिया ना बन जाए। हाँ, एक दरखास्त। दूसरी ये है, तस्बीह खाने में मैंने अर्ज किया 11 बजे लाइटें बंद हो जाएं, हर बंदा अपने मकाम पे चला जाए, जिक्र वाले, तस्बीह वाले, तिलावत वाले नीचे, अमाल वाले, हर चीज बंद हो जाए। और सोने वाले, तस्बीह वाले, कोई जगह जगह टोलियां बनी हुई ना हो, कोई जगह जगह ना हो बैठना, बातें करना, मोबाइल ना हो। अब ये रातें अल्लाह से बातें करने की हैं, सो जाएं, जल्दी उठें, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह के साथ राज़ो नियाज करें। और जो हजरात तस्बीह खाने में एतकाफ के मुकीम है वो स्टूडियो में नहीं जाएंगे क्योंकि उनका एतकाफ है। और सुबह जो आपको फार्म दिए थे पुर करने के लिए, वो आपने फार्म इस्तकबालिया पर जमा करा दिए होंगे इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला आखिरी अशरा है, इसमें तवज्जो करेंगे। और हमारा जो 22 रमज़ान की जो आ रही है रात 22 की, इसमें एक ताकतवर अमल है, मैंने आपको नक्श तावीज़ दिया है, नक्श यारे गार यारे मज़ार। इसके मैंने फायदे बताए। बाहर नक्श मिल रहा है, उसको लिखना है बस घुलने वाली स्याही से, ऐसी स्याही ना लेना जो घुलने वाली ना हो। उसका बहुत ताकतवर अमल मैंने आपको बताया हुआ है। हर इस्लामी महीने की 22 को यह नक्श लिखना है और 22 जमाती सानी को यह नक्श लिखने अपने पास रखें और इसको फिर आटे में घोल के बस सिर्फ परिंदों को डालना है, उसमें तरीका लिखा हुआ है। और 23वीं शब को गुड़ की डली पे अमल, और आपका कोई बाल अपने पास रखेंगे और नाखून हाथ पांव के काट के किसी कागज टिश्यू पे रखेंगे, उस पे अमल होगा और बहुत जबरदस्त अमल होगा। 25वीं शब को बरकती नोट अता किया जाएगा, हर साल मिलता है और जिसकी जेब में होता है बरकतें, दमशुदा पानी और तेल दिया जाएगा। और इसी शब 25वीं शब को झाड़ू का अमल होगा। झाड़ू या कोई ब्रश नया, ये अपने बदन पे, सारे घर के बदन पे फेर के ले आएंगे। जो इतकाफ वाले हैं वो यहां से लेके अपने बदन पे फेर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। जब घर जाएंगे सारे घर के बदन पे फेर के कहीं तस्बीह खाने में, कहीं मस्जिद में, कहीं रख देंगे। बड़ी बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें टलती हैं, हर साल अमल होता है और दुनिया इससे बड़ी मुराद पाती है और मुसीबतों से निजात पाती है। और 27वीं शब को खत्म कुरान, सूरत रहमान का नीले धागे का अमल, 4 रंगी तावीज का अमल, बरकत वाली थैली पर बरकत का अमल और खिजरी तावीज की तकसीम होगी। और इसी रात को अगर कोई हजरात निकाह कराना चाहते हैं लेकिन इतला पहले से करेंगे। 28वीं शब को सूरत वज़्ज़ुहा का अमल है और 28वीं शब को ही सूरज गिरहन का अमल है जो बहुत बड़े अज़ाब और बलाओं से टलवाएगा। और 19वीं शब को आयत करीमा का अमल और ये जो हुरूफ तहज्जी का अमल है ये होगा। और इसी 19वीं शब को जो है वो जो आप हजरात की तहरीरें हैं, जो अभी आखिरी अशरे की तहरीरें, उसको हम कहेंगे आखिरी अशरे की तहरीरें, उन पे भी अमल होगा इंशाअल्लाह। और ईद उल फित्र 6:30 बजे होगी और मजमा बढ़ रहा है। सहरी इफ्तारी के लिए पहले तशरीफ ले जाएं वरना जगह नहीं मिलेगी। मजमा बढ़ रहा है, सहरी इफ्तारी के लिए पहले तशरीफ ले जाएं, सहरी इफ्तारी के लिए पहले तशरीफ ले जाएं। और यहाँ खिड़कियों से बाहर ना थूकें, लोगों की बेइकरामी होती है। और चटाइयों के नीचे कोई चीजें कोई थूके ना, अदब का मकाम है, सजदों की जगह है, बहुत ज्यादा अदब का मकाम है। और आपके मेजबान आए हैं, आने वाले मेहमानों को माशाल्लाह आपने कुशादा दिल से मरहबा कहा, यह आपकी बहुत बड़ी आला ज़र्फी है माशाल्लाह। हादसात और गुमशुदगी से बचने के लिए अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, बच्चों को खुद संभालें, बच्चों को खुद संभालें। अभी दुआ होगी और दुआ के बाद आप फिर अपने 313 दफा जिक्र मामूलात जो सूरत कौसर, इसमें लग जाएंगे इंशाअल्लाह, इसमें कर देंगे अमल। सवाल जवाब की तरतीब कल होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक या अकरम मिन कुल्लि करीम
व या अज़म मिन कुल्ल अज़ीम अग़िस्नी मिन जूदिक व करमिक मद्द उमरी मुलाक़ि अल आक़िबा अंत अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कसल वल हरम व सूइल किबर व फितनत दुनिया व अज़ाबिल कब्र। ऐ अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमा, मुश्किलें हल फरमा, नाकामियां दूर फरमा। जितनी तेरी बंदियां बंदे आए हैं सबकी हाज़री को कबूल फरमा, सबकी हाज़री को कबूल फरमा, सबकी हाज़री को कबूल फरमा और सबकी मुश्किलें हल फरमा और यहाँ से खाली ना भेज। अल्लाह यहाँ की हाज़री का अदब अता फरमा, अदब अता फरमा, अदब अता फरमा। हम फ़कीर बन के यहाँ आए मौला, अपने दिल में अपनी हैसियतों को मिटा के आए हैं। हमारी यहाँ कोई हैसियत नहीं, फ़कीर बन के आए हैं और हम फ़कीरों को अल्लाह तू तमंगर बना दे, अमीर बना दे, रिज़्क़ वुसअत और बरकत अता फरमा। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।